ملک میں بجلی کا بحران جاری، شارٹ فال 7477 میگا واٹ ہو گیا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں 14 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ جاری، مختلف علاقوں میں عوام سراپا احتجاج۔ وفاقی حکومت کی جانب سے قبائلی اضلاع کے عوام کے لیے صحت سہولت کارڈ پر علاج معطل۔ انشورنس کمپنی اسٹیٹ لائف نے وفاق کی جانب سے فنڈ کی فراہمی سے انکار کے بعد خیبر پختونخوا حکومت کو فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان بن چکے، آئینی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں، ان کا ہر پیشی پر عدالت پیش ہونا مشکل ہے۔ رمضان شوگر مل ریفرنس میں شہباز شریف کی مستقل حاضری معافی کا تحریری فیصلہ جاری۔ کورونا کی چھٹی لہر کے وار تیز، مثبت کیسز کی شرح 4% سے تجاوز، مزید 4 افراد چل بسے، 126 افراد کی حالت تشویشناک۔ شمالی وزیرستان میں امن دشمنوں کے خلاف پاک فوج کی کارروائی، سیکورٹی فورسز کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 3 دہشت گرد ہلاک۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی بڑی کارروائی، پنجاب میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 9 دہشت گرد گرفتار، بارودی مواد، اسلحہ اور خودکش جیکٹس برآمد۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں $1 ارب کے لیے IMF نے تکنیک کا ناچ نچا دیا، سوچ رہے تھے پیٹرولیم قیمتیں بڑھانے کے بجائے الیکشن میں چلے جائیں، لیکن انتخابات میں جاتے تو ملک دیوالیہ ہو جاتا۔ ODI رینکنگ میں تیسری پوزیشن کے بعد قومی شاہین ورلڈ چیس چیمپئن میں بھی 1 درجہ ترقی کرتے ہوئے 5ویں سے 4تھی پوزیشن پر آ گئے۔ سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں کامیابی پاکستان کو بھارت سے تیسری پوزیشن چھیننے کا سنہری موقع فراہم کرے گی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیلات جانتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ مچا دے دھوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مکس نیوز کے ساتھ میں ہوں سوان قریشی۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، ملک بھر میں بجلی کا بحران سنگین شکل اختیار کرنے لگا، شارٹ فال 7477 میگا واٹ ہو گیا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں 14 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ پاور ڈویژن کے ذرائع کے مطابق ملک میں بجلی کی مجموعی پیداوار 21,223 میگا واٹ ہے، جبکہ طلب 28,700 میگا واٹ ہے۔ پاور ڈویژن کے ذرائع کے مطابق ملک کے مختلف علاقوں میں 14 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ زیادہ نقصانات والے علاقے میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی زیادہ ہے۔ دوسری جانب ملک کے مختلف علاقوں میں بجلی کی بدترین غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف عوام سراپا احتجاج ہیں۔ حکومت سے بجلی بحران پر فوری قابو پانے کا مطالبہ کیا ہے۔
वफाकी हुकूमत की जानिब से कबायली अजला के अवाम के लिए सेहत सहूलत कार्ड पर इलाज मुअत्तल कर दिया गया। इंश्योरेंस कंपनी स्टेट लाइफ ने वफाक की जानिब से फंड्स की फराहमी से इनकार के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फैसले से आगाह कर दिया। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा सेहत सहूलत प्रोग्राम को मुरासला जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कबायली अजला के 12 लाख खानदानों के नाम वफाकी सेहत सहूलत प्रोग्राम से निकाल दिए। अगर सूबाई हुकूमत सेहत सहूलत कार्ड जारी रखना चाहती है तो स्टेट लाइफ के साथ नया मुआहदा करना होगा। मुरासले में मजीद कहा गया, 1 जुलाई से कबायली शहरियों के लिए सेहत सहूलत प्रोग्राम पर मुफ्त इलाज की सहूलत बंद की गई है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में मुस्तकिल हाजिरी मुआफी का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद साजिद अली अवान ने 3 सफ़हात पर मुश्तमिल हुक्मनामे में कहा, शहबाज शरीफ 2021 से बाकायदगी से अदालत में पेश होते रहे। अब शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान बन चुके हैं, उन्हें आईनी जिम्मेदारियां भी अदा करनी हैं। हकीकत है कि शहबाज शरीफ का हर पेशी पर अदालत पेश होना मुश्किल है। तहरीरी फैसले में मजीद कहा गया कि शहबाज शरीफ की गैर मौजूदगी में ट्रायल में कोई रुकावट हायल नहीं होगी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल रेफरेंस में शहबाज शरीफ की जानिब से उनके नुमाइंदे मोहम्मद नवाज एडवोकेट को हाजिरी के लिए मुकर्रर कर दिया। पाकिस्तान में कोरोना वार में एक मरतबा फिर तेजी आने लगी। मुस्बत केसेस की शरह 4% से तजावुज, जबकि मजीद 4 अफराद जान की बाजी हार गए। कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 4.47% तक जा पहुंची, जबकि 126 अफराद की हालत भी तशवीशनाक है। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 4 अफराद जान की बाजी हार गए। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की बुनियाद पर एक ऑपरेशन किया गया, जिसमें 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके गुलाम खान कले में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर इंटेलिजेंस कार्रवाई की गई। फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए, जबकि हलाक होने वाले दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलविस थे। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी पंजाब ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कार्रवाइयों के दौरान 9 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द के कब्जे से बारूदी मवाद, असलहा, खुदकुश जैकेट्स भी बरामद हुई। CTD तर्जुमान ने मजीद बताया कि कार्रवाइयां गुजरांवाला, लाहौर, सरगोधा, मुल्तान और रावलपिंडी में की गई। गिरफ्तार दहशतगर्दों के खिलाफ 7 मुख्तलिफ मुकदमात का इंदराज किया गया है। दहशतगर्दों में याकूब, अब्दुस्समद, बिलाल, आरिफ अमीन, फारूक और आसिफ शामिल हैं। तर्जुमान CTD ने कहा कि मुल्जिमान से तफ्तीश जारी है, अहम इंकशाफात मुतवक्के हैं। इस्लामाबाद में शुहदाए पुलिस तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, $1 अरब के लिए IMF ने तिगनी का नाच नचा दिया। हर कीमत पर IMF से मुज़ाकरात करना लाजमी थे। पहले IMF से गलत मुआहिदा किया गया जो खामियों से भरपूर था। वफाकी वजीर दाखिला का मजीद कहना था कि कोशिश की पेट्रोल की कीमतें न बढ़ाना पड़े। ये भी सोचा कि कीमतें बढ़ाने के बजाय इलेक्शन में चले जाएं, लेकिन इलेक्शन में जाते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। पाकिस्तान की मईशत और अमन व अमान की सूरत हाल सारी क़यादत के मिल बैठ कर बात करने से ही हल होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की टेस्ट चैंपियनशिप में तरक्की हो गई। कौमी टीम पॉइंट्स टेबल पर 4थी पोजीशन पर बराजमान हो गई। ख्याल रहे कि पाकिस्तान के पास आइंदा माह श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में फतह से भारत से 3री पोजीशन छीनने का भी सुनहरी मौका मौजूद है। पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त ऑस्ट्रेलिया पहले, जनूबी अफ्रीका दूसरे, भारत तीसरी, जबकि पाकिस्तान 4थे नंबर पर मौजूद है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। अल्लाह निगहबान। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त
जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies.